So we are solving another interview experience of Goldman Sachs. So let us see what the author has written. So I applied through the company's career portal. Application ended on 6th August. Okay, so this whole story ये वही है. अगर आपको जाननी हो तो राइट मुंह पर एक लिंक आ रहा होगा, क्लिक ऑन दैट. ये पूरा वही है रिगार्डिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एंड जो फर्स्ट राउंड हुआ था टेक्निकल टेस्ट. सो ये वही है. तो हमारे काम की चीज़ स्टार्ट होती है इधर से, इंटरव्यूज़. ओके, so all the interviews rounds took place on the same day. First interview round, it started with a typical tell me about yourself question. Every time he asked me to explain a little about my projects. So ये दोनों question हमेशा पूछते हैं वो mostly starting में. After that, which all data structures you know and your favorite data structures. I replied with linked list. So it's a very witty answer, I would say, witty and smart answer. ये मुझे काफ़ी questions करने के बाद पता चला. एक्चुअली जब भी अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो लिंक लिस्ट इज़ अ वेरी सेफ आंसर, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत कम है. अगर आप क्वेश्चंस देखोगे करने जाओगे तो आपको पता चलेगा सबसे कम जो आपको वेरिएशन मिलेगी ना वो लिंक लिस्ट पे मिलेगी. सो रियली स्मार्ट आंसर विद लिंक लिस्ट. और लिंक लिस्ट के यूजेस क्या क्या हैं? वेब पेजेस एक डबली लिंक लिस्ट से कनेक्ट होता है. मैं दिखाता हूँ. अच्छा, यहाँ क्रॉप की हुई है ना मैंने वीडियो, जस्ट अ सेकेंड. सो ये है डबली लिंक लिस्ट का एग्जांपल. अगर आप यहाँ ऊपर देखो तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे गया तो जो नेक्स्ट पेज है वो खुल गया एंड मेरे पास प्रीवियस जाने का भी है, मतलब ऑप्शन है. तो ये क्या, ये डबली लिंक लिस्ट है. डबली लिंक लिस्ट की एक नोड में वी हैव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड एज वेल एज द प्रीवियस नोड. सो ये जो वेब पेजेस कनेक्टेड हैं ये एक्चुअली डबली लिंक लिस्ट का एग्जांपल है. This is the second example of where linked list is used. If I play this song, then I am having the option of going right and I go to the next song. Now from here if I go back, then I am reaching the same song. So that means each song is a node and these are connected. I mean, in a doubly linked list you have the connection of going forward as well as backward. So each node is having the address of the next node as well as the previous node. So this is also a use of linked list. The next question is, he asked the difference between array and linked list, time complexities of insertion, deletion, etc. in both of them. Then he asked about sorting of an array, different algorithms and their time complexities. So about sorting an array, there are multiple ways you can go through the sorting techniques. There are too many, so I'm not going over that. Regarding the complexities of insertion and deletion, so yes, I have prepared this. You can see that this is array and linked list. So I am making an assumption that I am only having the address of head, okay, so of linked list. So for that, if you want to insert something at beginning, so in array the time complexity would be order of n. Why? Because if you add something at the 0th index, then all the remaining elements in the array needs to be shifted right by 1 unit. So that would be, you will have to go till the last, so order of n. But in linked list you are having the address of head, so you just need to add one more node at the starting and then make it as the head, as the new head. Okay, so that would be in constant time. Similarly, if you want to delete something from array, but if it is the last element, then you can simply remove it. You have the direct index of that element, so you can remove it off in constant time. But in linked list you have to traverse next and go till the last, so that would be in order of n. Similarly, you can see that of delete functions in array. If you have to delete something from the beginning, then right वाले सारे element को एक left shift करना पड़ेगा, so that would be in order of n. लिंक लिस्ट में वही है, हमारे पास हेड पॉइंटर होगा स्टार्टिंग का, तो हम सिंपली हेड को एक नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे और पिछली वाली नोड डिलीट कर देंगे. सो वो कांस्टेंट टाइम में. सिमिलरली गोज फॉर अगर एंड में है तो कांस्टेंट टाइम और इसका ऑर्डर ऑफ एन. सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. आफ्टर दैट ही आस्क्ड हाउ वुड यू सॉर्ट अ लिंक लिस्ट, हाउ वुड यू फाइंड द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट इन वन पास, हाउ वुड यू मर्ज टू लिंक लिस्ट. So this question is quite important. I will take some time in order to explain this. So let us see. Sorting a linked list, the best way to sort a linked list is by using merge sort. So I would be explaining merge sort only. Before really diving into the code,
वी शुड नो कि मर्ज सॉर्ट कैसे, आई मीन हाउ इट टेक्स प्लेस, मर्ज सॉर्ट होता कैसे है। तो कैसे होता है मर्ज सॉर्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो प्री रिक्विजिट्स हैं इस क्वेश्चन के। नंबर वन इज फाइंडिंग मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, मिडल ऑफ लिंक लिस्ट, एंड सेकेंड इज मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ये मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन तो शायद पिछली बार भी किया था। आई एम सॉरी, माई फिंगर इज इंजर्ड, सो राइटिंग ऐसी होगी। तो हाउ इट एक्चुअली टेक्स प्लेस, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जो मिडल है, ठीक है, 5 नोड्स हैं इसमें, तो 3 2 का मान लेते हैं, तो आई वुड स्प्लिट इन इनटू 2। तो पहले स्टेप के बाद क्या हो जाएगी, ये लिंक लिस्ट कुछ ऐसी बन जाएगी, 3 5 एंड देन 2, एंड ये राइट में होगी 4 एंड 5, 4 एंड 1 सॉरी। तो ये मैंने कैसे किया, मैंने मिडल, जो मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट होता है वो फाइंड किया, तो वो 2 आया। तो 2 के जो नेक्स्ट है, इनको एक तरफ ले गया और इनको एक तरफ लग गया, तो मैं मिडल मैंने ढूंढा और मैंने स्प्लिट कर दिया, इसीलिए मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट का कोड आना ज़रूरी है। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, यही मैं रिकर्सिवली करता जाऊँगा, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो इस पे अगर मैंने सेम कोड लगाया, मिडल से इसको तोड़ दिया, तो ये 4 अलग हो जाएगा और 1 अलग हो जाएगा, तो 2 नोड्स अलग हो गई। सिमिलरली अगर मैं इस पे लगाऊँ तो ये भी 3 है, तो 2 1 कर सकते हैं हम, तो 3 5 और ये राइट में बचा 2। अब इसके बाद ये 3 एंड 5 अलग अलग हो जाएगा। सो अब अगर आप बेस लेवल पे देखो सबके, तो सारी नोड्स अब अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है, मैंने सबको अलग अलग स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे गेम आएगी, जो मर्जिंग ऑफ लिंक लिस्ट बोला गया था, दैट इज नॉट मर्जिंग ऑफ टू लिंक लिस्ट, दैट इज एक्चुअली ऑफ मर्जिंग टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। अब आप मर्जिंग करके भी आप मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का कोड लिखोगे, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इफ यू सपोज देयर इज ओनली 1 नोड, तो हम इसको सॉर्टेड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल सिंगल अलग अलग है, तो मैं बोलूंगा ये 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट है मेरे पास। तो जब ये 3 और 5 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट हैं, तो जब मैं इनको मर्ज करके कंबाइंड सॉर्टेड लिस्ट बनाऊंगा, तो वो क्या बनेगी, 3 और 5, ठीक है, ये मेरी अभी की करंट है, ठीक है। अब मैं इसके बाद ऊपर आऊंगा और मैं देखूंगा देयर इज ऑल्सो 2। सो अभी भी मेरे पास 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट हैं, 3 और 5 एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट और 2 ये। अब मैं इन दोनों से एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनाऊंगा, तो इन दोनों से जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनेगी दैट विल बी 2 3 एंड 5। तो अब मेरे को कौन सी 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिलेंगी, एक मिलेगी 2 3 5, और सिमिलरली ये राइट हाफ में भी हुआ होगा, तो राइट हाफ में बची होगी 1 और 4। तो अभी भी मेरे पास 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट हैं, एक ये एक ये। तो अब मैं इनका कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तो जो मर्जिंग टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट था, उसका प्रोग्राम हमने पिछली वीडियो में भी किया था। इफ़ यू हैव स्किप्ड दैट पार्ट देन आई विल से कि प्लीज़ एक बार जाके देख लो, तो बहुत अच्छे से मतलब समझ आ जाएगा। सो लेट्स कोड इट आउट नाउ। रिटर्न हेल्पर फंक्शन हमेशा की तरह, देन स्टैटिक हेल्पर क्या रिटर्न कर, चला गया, हेल्पर क्या रिटर्न करेगा, नोड, एक नोड ही रिटर्न करेगा हमें, एंड हेल्पर ठीक है। तो अब मैं हेल्पर फंक्शन हमें लिखना है। तो अगर मेरा हेड, लेट सपोज अगर हेड ही नल है, तब तो क्या ही सॉर्टिंग कर पाऊंगा मैं इसमें, तो रिटर्न नल। इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, अगर एक ही नोड है पूरी लिंक लिस्ट में तब भी घंटा सॉर्टिंग नहीं होगी, तो रिटर्न हेड। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मिडल है, ठीक है, लिंक लिस्ट का जो बीच मतलब मिडल एलिमेंट है, मैं वो निकालूंगा। तो वो लेट सपोज मेरे को एक फाइंड मिडल करके कोई फंक्शन पता है जो मैं बाद में लिखूंगा, तो मैं सपोज करता हूँ कि उससे मैजिकली मेरे को समाओ मिडल एलिमेंट मिल जाएगा। लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट राइट नाउ, मैं कुछ लिखूंगा बाद में जिससे मेरे को मिल जाएगा। अभी हम बस ये सोच रहे हैं यहाँ मिडल के पास बीच वाले एलिमेंट का एड्रेस आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो मिड होगी, मतलब लिंक लिस्ट का जो मिड होगा, जब मैं उसे स्प्लिट करूंगा तो मेरे को 2 एड्रेस स्टोर करने पड़ेंगे। एक तो स्टार्टिंग वाला हेड पे रहेगा, एक सेकेंड जो लिंक लिस्ट होगा उसका हेड। तो सेकेंड लिंक लिस्ट का हेड होगा मिड, तो मिड है मिडल डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं मिडल डॉट नेक्स्ट को नल कर दूंगा, नल करते ही मैंने 2 लिंक लिस्ट तोड़ दी, ठीक है।
मिडिल डॉट नेक्स्ट करते ही मेरी दो लिंक लिस्ट अलग हो गई, स्प्लिट हो गई। बट मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक लिंक लिस्ट को दो पार्ट्स में नहीं तोड़ना, मुझे रिकर्सिवली उसे तोड़ते ही जाना है जब तक वो एक एक में स्प्लिट ना हो जाए। तो मुझे यहाँ रिकर्सिव कॉल लिखनी पड़ेगी। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे रिकर्शन लगेगा। अब मैं जान के हेड ए और हेड बी दो वेरिएबल्स लूँगा ताकि जो कल पिछला वाला कोड लिखा था मर्जिंग टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, वो एज इट इज मैं लिख सकूँ। तो हेल्पर पहले वाले में क्या पास होगा, हेड, क्योंकि ये लेफ्ट वाली लिंक लिस्ट जो अभी हमारे दो में टूटी थी लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट वाली को फर्दर तोड़ती रहेगी एक एक में। तो और दूसरी वाली में मैं मिड डालूंगा, मिड इज हेड ऑफ द सेकंड लिंक लिस्ट जो हमने स्प्लिट की। तो ये रिकर्सिव कॉल्स लिखने से मेरी सारी नोड सिंगल 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 में स्प्लिट हो जाएंगी। अब मैं अपना आंसर नोड ले लेता हूँ जो मैं फाइनली रिटर्न करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा सॉर्ट। यहाँ होगी एक्चुअली हमारी मर्ज सॉर्ट। तो इसमें जाएगा हेड ए और हेड बी और फाइनली मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा अपना आंसर। तो हेल्पर फंक्शन तो हो गया हमारा। अब जो हमें दो प्री रिक्विजिट्स थे इस क्वेश्चन के वो आने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा, क्योंकि पहले यूज हुआ है फाइंड मिड, ठीक है। तो स्टैटिक फाइंड मिड नोड, स्टैटिक रिटर्न क्या करेगा, नोड रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप लिखना बहुत जरूरी है। नोड लेट्स कॉल इट हेड। सो इफ हेड इक्वल्स नल, तब तो कोई मिडल नहीं होगा। अगर हेड डॉट नेक्स्ट नल है तो जो मिडल एलिमेंट मैं बोलूँगा वो हेड को बोल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक स्लो पॉइंटर लूँगा और एक फास्ट पॉइंटर लूँगा। मैं बताता हूँ क्यों। दिस इज वेरी मच लॉजिकल, मतलब एक फास्ट लूँगा एक स्लो, ठीक है। सो वाइल माई फास्ट डॉट नेक्स्ट is not equal to null and fast dot next तो मैं क्या करूंगा, एक रखूंगा फास्ट पॉइंटर, एक रखूंगा स्लो पॉइंटर। फास्ट स्लो को मैं क्या करूंगा, स्लो को मैं करूंगा स्लो डॉट नेक्स्ट। हर बारी मैं स्लो को एक पॉइंटर राइट में शिफ्ट कर दूंगा और मैं फास्ट को करूंगा दो टाइम्स सेम, फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ये क्यों किया मैंने, अगर आप एक पॉइंटर को हर टाइम दो टाइम्स बढ़ा रहे हो और एक को एक, तो जब फास्ट वाला पॉइंटर लास्ट में पहुंचेगा तो स्लो वाला पॉइंटर एग्जैक्टली मिड में पहुंचेगा, ठीक है। ये क्वाइट लॉजिकल, मतलब काफ़ी लॉजिकल चीज़ है। अगर आप एक को दो मतलब एक को आप दो के डिफरेंस से बढ़ा रहे हो, एक को एक के, तो जब फास्ट पॉइंटर लास्ट में पहुंचेगा तो स्लो पॉइंटर ऑफ कोर्स बीच में होगा। तो बस हमारा यही काम है। इसके बाद हम रिटर्न स्लो कर देंगे, तो स्लो जो होगा वो हमारा मिड होगा। तो ये कोड था टू फाइंड द मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। अब हमें वही लिखना है, टू मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। सो ये तो मतलब कल लिखा था, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन एनी फर्दर। इसमें क्या था, इफ हेड ए इक्वल्स टू नल, तो हम रिटर्न करते हैं हेड बी। सिमिलरली अगर हेड बी नल है तो हम रिटर्न करते हैं हेड ए। उसके बाद इफ कंडीशन, इफ हेड ए डॉट डेटा इफ लेस देन इक्वल टू हेड बी डॉट डेटा, देन हेड ए डॉट नेक्स्ट। सेम फंक्शन को कॉल लगाते हैं, हेड ए डॉट नेक्स्ट हेड बी, क्योंकि हेड ए तो एक आगे बढ़ गया, क्योंकि हेड ए की जो वैल्यू थी वो छोटी थी, और इसके बाद हम कर देते हैं रिटर्न हेड ए। ये सेम कोड है जो आप पिछली वीडियो में जाके सॉर्टिंग टू सॉर्टेड लिस्ट देख सकते हो।
sorting to sorted linked list or merge to sorted linked list. कहाँ लिखा, add b dot next equal to sort head a as it is, head b dot next, return head b. तो कोड तो इतना ही था, बट क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया तो शायद एरर आए. लेट्स सी, आई होप ना आए. बिंगो. वाह, just like a pro. Then he asked about how would you be able to manage the business and finance decisions at Goldman Sachs. Tell me an incident when you had the chance to display your leadership skills. So ये kind of HR type question है. A better suggestion would be to have these stories in your mind पहले से ही, ठीक है. मतलब ऐसी 3-4 स्टोरीज दिमाग में ऐसे रख के जाना जिसमें एक में आपकी लीडरशिप स्किल हाईलाइट हो रही हो, एक में आपकी मैनेजमेंट स्किल हाईलाइट हो रही हो, एक में आपने कैसे टीम में काम किया इस चीज़ की. समटाइम्स दे आस्क एंड उस टाइम पे अगर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ वगैरह वगैरह, देन इट गिव्स अ नेगेटिव इम्प्रेशन. दे विल थिंक कि इसको अभी अपने बारे में नहीं पता ये क्या काम करेगा. सो इट्स बेटर कि अगर आप ऐसी कोई एक आधी स्टोरीज आपके दिमाग में रहे, देन यू कैन explain that and बता सकते हो कि I have already done something in the past. Lastly, I was allowed to ask questions from the interviewer, so ये भी personal choice है जो आपको कुछ ना पूछ सकते हो. Second round interview, this round was relatively short and mostly consisted of coding on HackerRank's code per platform. Okay, the interviewer asked me about my previous interview and what all questions were asked in it, so वो तो हमने कर लिए हैं, then that is fine. Then there was a discussion about my projects around में discuss कर रहे हैं. He asked me to write code for finding the middle of a linked list in one pass. So जो हमने code लिखा था that was in one pass only. One pass means एक बार ही loop लिखना है and it should return the answer. So वो one pass में middle of a linked list ही हमने ढूंढा था. After that I had to write the code for implementation of a queue. I first discussed the approach with him using array and linked list for some time. They wrote the code using a linked list by taking head and tail pointer. बिल्कुल. So if you want to implement a queue, so queue की implementation होती linked list से basically. आप क्या करोगे, आप एक head pointer रखोगे, एक tail pointer रखोगे. क्या करना है, head से deletion करते जाना है and tail pointer से, मतलब अगर आपको जब क्यू से आपको एलिमेंट बाहर चाहिए, सो दैट शुड बी ऑन योर हेड. ठीक है, हेड मतलब स्टार्टिंग में कि आपकी जो डिलीशन है वो 1 सेकंड में हो जाए एंड देन आप उसको हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर दो. तो हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट होते ही जो पिछला हेड था दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू. सिमिलरली अगर आपको कुछ ऐड करना है क्यू पे तो टेल पॉइंटर पे आप एक नई नोड ऐड कर सकते हो. सो दैट वुड बी इन ऑर्डर ऑफ 1 दोनों ऑपरेशन. सो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन can be easily done by using linked list. देख लेना, this is a very easy question and implementation या designing में आता है तो it's better to have a look. He was satisfied with it and the round ended with me asking him questions I had. So pretty easy round I would say, कुछ as such hard पूछा नहीं गया. First was चलो ठीक है, merge sort was a bit okay but this was comparatively easy. Third round, this round was HR plus technical. The interviewer started by giving his introduction and a brief insight into what GS does. Okay, that is fine. He then asked my introduction and why do I want a software job while my branch is EC. So you can answer ki the branch which I got was because of the marks that I scored in my 12th or whatever it was. So you can tell that my marks of class 12th doesn't show my interest towards computer science, yeah, towards working in a software job, yeah, towards working in a software company. He asked about my projects and the technologies used in them. How would you deploy an application and what happens in the process of entering a keyword in the browser and loading your requested page. So ये काफ़ी famous question है, process of entering a keyword in the browser and loading your requested page. So what happens when you search something on the browser?
कैसे लोड होता है ये यूआरएल से वेब पेज। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम एंटर करते हैं यूआरएल इनटू द वेब ब्राउज़र, सो द ब्राउज़र लुक्स अप टू द आईपी एड्रेस फॉर द डोमेन नेम वाया डीएनएस। सो डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम सर्वर, वो क्या करता है, हर एक पर्टिकुलर डोमेन नेम के अकॉर्डिंग एक आईपी एड्रेस ढूंढता है, ठीक है। देन ब्राउजर सेंड्स एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द सर्वर कि मेरे को इस पर्टिकुलर आईपी पे जो भी आपके पास वेब पेज पड़ा है मेरे को वो चाहिए। देन सर्वर सेंड्स बैक अ एचटीटीपी रिस्पॉन्स। देन ब्राउजर उससे HTML को पढ़ता है, HTML डिस्प्ले करता है। देन ब्राउजर गेट्स टू नो कि इसमें जो एडिशनल CSS फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, वो भी मेरे को रिक्वेस्ट करनी है। तो ऐसे ही हमारा ब्राउज़र हमारे सर्वर से रिक्वेस्ट करता रहता है, एंड देन जब उसके पास पूरे पेज की डिटेल्स आ जाती है, देन इट रीड्स दैट HTML और वेब पेज जो भी है, एंड देन इट डिस्प्लेज द HTML पेज टू अस, ठीक है। तो इतना सब कुछ होता है व्हेन वी टाइप द URL इनटू आवर वेब ब्राउज़र। After that, the next question is how to find the kth node from the end of a linked list in one pass. So let us see how exactly we are going to do it. K की जगह n कर दिया है, तो सिंगल पास क्या, सिंगल पास मीन्स यू कैन ट्रेवर्स थ्रू द एरे ओनली वंस। सो सिंगल पास में हम कैसे कर सकते हैं, मैं 2 पॉइंटर यूज़ करूँगा। सबसे पहले पॉइंटर को मैं शिफ्ट कर दूंगा k टाइम्स फॉरवर्ड, स्टार्टिंग से लेके k, n यहाँ पे n है तो n टाइम्स, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंटर होगा वो तो रहेगा स्टार्ट में, ठीक है, वो लेट सपोज स्टार्ट में ही रहेगा। अब जो दूसरा पॉइंटर होगा वो लेट सपोज मैं बोलूँ एंड पॉइंटर, इन दोनों का डिफरेंस होगा k, ठीक है। ये k टाइम्स आगे चलेगा, k टाइम्स आगे चला गया। अब मैं दोनों को एक एक करके बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे लिंक लिस्ट का लास्ट है, ठीक है, ये यहाँ लिंक लिस्ट खत्म हो रही है। तो अब मैं जब इन दोनों को एक एक करके बढ़ाता जाऊँगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस n है मेरा। अब जब मैं इनको ऐसे ऐसे करके एक एक करके बढ़ाता जाऊँगा, और जब एंड आ जाएगा एकदम लास्ट में, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले ही n था, तो लास्ट से मेरे को nth नोड मिल जाएगी। जब एंड नल पे पहुँचेगा तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंटर है वो मेरा nth नोड फ्रॉम लास्ट पे पहुँच जाएगा, तो मेरे को एक ट्रेवर्सल में लास्ट से nth नोड मिल जाएगी। तो यही है सिंगल पास। तो इफ हेड इज इक्वल्स टू नल, रिटर्न -1, नहीं तो एक i लेना पड़ेगा, 1 इसलिए क्योंकि हम स्टार्टिंग फर्स्ट नोड से कर रहे हैं, और एक नोड एंड पॉइंटर ले लेते हैं स्टार्ट, तो ये भी हेड से ही होगा। सो वाइल एंड इज नॉट इक्वल टू नल एंड i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स n, जब तक i कम है तब तक end इज इक्वल्स टू end डॉट नेक्स्ट और i प्लस प्लस। अगर वो n टाइम्स जाते जाते ही वो नल पे पहुंच गया, मतलब मेरी लिंक लिस्ट में n नोड्स है ही नहीं, तब nth फ्रॉम लास्ट का तो मतलब ही नहीं होगा। तो इसका ये है इफ i इज लेस देन इक्वल टू n, तो मैं बाहर आ गया, तब तो भैया रिटर्न -1, तब तो मतलब n, जब n नोड्स ही नहीं है तो nth नोड फ्रॉम लास्ट का मतलब ही नहीं होता। नहीं तो क्या करूँगा मैं, वाइल, नहीं तो मैं एंड जब तक नल पे नहीं पहुँचता तब तक हेड को भी बढ़ाऊंगा और एंड को भी बढ़ाऊंगा। हेड इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, और इसको मैं कर दूंगा रिटर्न हेड डॉट डेटा। Let's see this. Okay, second from the last, 8th है, सबमिट करके देखते हैं। Cool, it's working. After this, what is median and how would you find the median of an unsorted array? I told the O of n log n solution using sorting. So median क्या होता है, जब आप सॉर्ट करो तो जो बीच वाला सबसे एलिमेंट होगा that is median। तो मीडियन ढूंढने के लिए आपको एनी डे सॉर्ट करना ही पड़ेगा एरे को। देन ही asked me to find median of all ages of the people in the world in a time complexity better than O of n log n. तो a better time complexity is O of n plus k, that is counting sort। तो आई एम श्योर कि इन्होंने यही आंसर दिया होगा। आई सॉल्व्ड इट यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट या बकेट सॉर्ट, देख लेना, दोनों O of n plus k में करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ n, हाँ दैट इज लीनियर ओनली।
तो काउंटिंग सॉर्ट जो ऊपर मैंने बोला था, सॉर्टिंग टेक्निक्स बहुत सारी टाइप्स की हैं, तो काउंटिंग सॉर्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। ऊपर भी पूछा था शायद, कहीं पे तो था, पता नहीं। तो काउंटिंग सॉर्ट इज़ रियली यूजफुल, देख लेना, ये एक्स्ट्रा स्पेस में करती है बट सुपर एफिशिएंट, बिकॉज एट द एंड आपको ऑर्डर ऑफ एन में सॉर्टिंग करके मिल जाता है। सो इतना करना आई थिंक वुड बी इनफ, बट रिलेटिवली आई फाउंड दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस ईजी। सच कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया। So on 18th of November, the author got selected. Congratulations. And that's all for this video.